Hey YouTube, thanks for visiting. Hope all you are doing well. So this is the third session of our general aptitude practice session for the CSR UGC NET part A for the upcoming exam 2023. Okay, so those who are new, so this session is helpful for all of you guys. So in this session we discuss the new general aptitude questions for the upcoming CSR NET. This is practice session, and anyone of the CSR net aspirant obviously may join the session. Okay, I think this session should be very helpful for your preparation of CSR net. Okay, so let's start. And before starting, those who are new, for those who are watching me for the first time on YouTube, so please give a like to this video, share it with your friends and subscribe the channel. And इससे पहले मैं दो वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा, एंड एक प्लेलिस्ट भी है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से जाकर आप मतलब एक वन बाय वन आप वीडियो चेक कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स कम्स टू क्वेश्चन नंबर 15. You already solved up to question number 14, okay, from asset. So in this session we solve 15 to 20, that is 6 question, and then we complete one complete paper of model paper, you can say. Okay, so let's start with question number 15. It says that if you have any problem, bring them to me. Then assumption 1 बोला है कि so I am able to solve any of your problems. Okay, assumption 2 says you don't have any problem. So see here assumption 2 and in this statement is not related to the assumption 2, because यहाँ पर बोला है कि if you have any problem bring them to me. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, ऑब्वियसली मैं देख सकता हूँ उस प्रॉब्लम का, ऐसा कुछ बोला है। एंड एजम्पशन 2 बोल रहा है कि यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम आपका है या नहीं है, इसके साथ ये जो सेंटेंस फास्ट गिवन है ना, इसका कोई मतलब लेना देना नहीं है, ठीक है। एजम्पशन 1 क्या बोला, आई एम एबल टू सॉल्व एनी ऑफ योर प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो एजम्पशन ये कर रहा है, मतलब आई एम एबल टू सॉल्व एनी ऑफ योर प्रॉब्लम्स। देन the next one is if you have any problem then bring them to me. Okay, so here very clearly assumption 1 is implicit. Okay, बाकी कोई भी statement नहीं बनेगा, ठीक है। So this is very easy problem. Now question number 16, it says that P is behind M and N. Okay, so P is behind M and N, and M and N का जो कोई रिलेशंस नहीं है, ठीक है। एंड देन बोला है Q is behind P. सो क्यू इज ऑब्वियसली बिहाइंड पी, सो क्यू इज हियर, ठीक है। एम एंड इनका तो कोई मतलब आगे पीछे ऐसा कुछ बोला नहीं है यहाँ पर। सो नाउ यहाँ पर स्टेटमेंट हुआ है द इन्फ्रेंस इज डेफिनेटली ट्रू। इन्फ्रेंस क्या है, क्यू इज डेफिनेट बिहाइंड एम। सो येस ऑब्वियसली ट्रू, क्योंकि एम है यहाँ पर एंड पी के आगे है, ठीक है। एंड क्यू जो है पी का भी पीछे है, तो क्यू ऑब्वियसली एम का भी पीछे है, ठीक है। सो इन्फ्रेंस 1 इज डेफिनेटली ट्रू इज द करेक्ट वन आंसर। ओके, so you don't go to check the remaining options. Okay, now 17, it says that a goods train runs at a speed of 72 km per hour and cross a 250 meter long platform in 26 seconds. Okay, then what is the length of the goods train? So this is very well known problem and comes in CSR net. Now how can we solve the problem? We know that we first add the take the length of the platform, length of the goods train here, and then we can solve it. Now here I use the method. देखो यहाँ पे बोला है कि मीटर पर सेकेंड में सब कुछ है, मतलब यहाँ पर 26 सेकेंड है। तो फर्स्ट ये जो वेलोसिटी है ट्रेन का, इसको क्या है 72 किलोमीटर पर सेकेंड है, सॉरी किलोमीटर पर आवर है। तो इसको फर्स्ट कन्वर्ट करते मीटर पर सेकेंड है। कैसे करेंगे, देखो जब ये मतलब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। एक शॉर्टकट ट्रिक है, आप याद रखना, ठीक है। तो जब भी आप किलोमीटर पर आवर के मतलब जो है यूनिट को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे, तब आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। एंड जब आप मीटर पर सेकेंड से जाओगे किलोमीटर पर आवर में, तब इस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करना 18/5 से, ठीक है। सो ये दो ट्रिक आप याद रखना, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक। नाउ देखो यहाँ पे क्या होगा, इसका वैल्यू होगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो देखो ये जो है ट्रेन का जो वेलोसिटी है वो है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
नाउ ये कवर करता है प्लेटफॉर्म को कितना सेकेंड में, 26 सेकेंड में। तो 20 सेकेंड जो है 26 सेकेंड में ये कवर करेगा कितना डिस्टेंस, जो कवर करेगा कितना होगा 26 इंटू 20, तो ये होगा 520 मीटर। ओके, नाउ 520 मीटर इज द टोटल डिस्टेंस, दिस इज ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस करते हैं जब ऐसा क्वेश्चन आते हैं तो प्लेटफॉर्म का लेंथ एंड ट्रेन का लेंथ दोनों ही कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। मतलब इस टाइप का प्रॉब्लम में आप सभी ने जानते हो। तो ये है ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ, क्योंकि जब एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म का कवर करता है वो खुद का डिस्टेंस भी कवर करता है, तो आप सब लोग जानते हो ये। तो यहाँ पर बोला है जो प्लेटफॉर्म का लेंथ है 250 मीटर। ओके, तो ट्रेन का लेंथ कितना होगा 520 माइनस 250, दिस इज इक्वल टू 270 मीटर। सो दिस इज वेरी इजी ट्रिक आई थिंक टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, नहीं तो आपको जो है एक्स पकड़ो देन मैथ सिंपली जो है आप जानते हो तो आप वो कर सकते हो, बट वो लंबा पड़ जाएगा। आई थिंक ये जो होगा वो बहुत ईजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैलेंडर फॉर द ईयर, देखो ये कैलेंडर प्रॉब्लम है, 2007 विल बी द सेम फॉर द ईयर। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी प्रॉब्लम। देखो कैसे करेंगे, ऐसा जब क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, ऑड डेज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखो 2007 देन 08 देन 09, ठीक है। ये जो ईयर्स होगा इसका ऑड डेज कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड ऑड डेज को आप क्या करोगे, ऑड डेज मॉड्यूलो 7 करोगे, ठीक है। क्योंकि 7 डेज में एक वीक होता है, आप सभी ने जानते हो। एंड एक नॉर्मल ईयर 365 डेज में होता है, एंड यहाँ पर 1 ऑड डे रहता है, ठीक है, ऑड डे। एंड जो लीप ईयर होता है, ठीक है, लीप ईयर 366 डे में होता है, एंड यहाँ पे 2 मतलब ऑड डेज होता है। क्योंकि ये 365 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 364, मतलब 52 वीक्स का नॉर्मल एक ईयर में क्या होता है 52 वीक्स एंड 1 डे, ठीक है। तो ये 1 डे को बोलते हैं क्या, ऑड डे। सिमिलरली एक लीप ईयर में क्या होता है 52 वीक्स एंड 2 डे, तो ये 2 को बोलते हैं लीप ईयर की केस में ऑड डे, ठीक है। तो देखो यहाँ से मैं लिखता हूँ ऑड डेज कैलकुलेट करेंगे एंड मॉड्यूलो 7 करेंगे, ठीक है। मॉड्यूलो 7 जब 0 होगा उसका जो नेक्स्ट वाला ईयर होगा वो होगा यहाँ पर सेम कैलेंडर वाला, ठीक है। तो देखो 2007 ये एक नॉन लीप ईयर है, तो इस यहाँ पे 1 ऑड डे, ये 8 4 से डिवाइड करेंगे तो ये लीप ईयर होगा, ये लीप ईयर होगा, ये नॉन लीप ईयर होगा। तो देखो 1 + 2 + 1 तो ये आएगा 4 ना, 4 से मतलब मॉड्यूलो 7 करोगे तो क्या आएगा 4 ही आएगा। देन यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर लिखेंगे 10 मतलब 2010, देन 2011, देन 2012, देन 2013 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो 1 में भी 10 में भी 1 ऑड डे, देखो यहाँ पर शाम जो आया ये अभी तक 5 आया, ठीक है ना। यहाँ पर 1 ऑड डे तो यहाँ पर 6 आया शाम इतना तक, ठीक है, इतना तक 5। देन यहाँ पर 12 मीन्स ये एक लीप ईयर है तो यहाँ पर 2 ऑड डे, देखो 6 + 2 8। तो यहाँ पर देखो 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं मिलेगा, मतलब 7 से जब ये जो शाम मिलेगा ये ऑड डेज का शाम मॉड्यूलो 7 करके 0 हो जाएगा तब हम स्टॉप करेंगे, ठीक है, ये कैलकुलेशन। देन 23 में 1 ऑड डे होगा ना, यहाँ तक ऐड करेंगे तो 9 आएगा, यहाँ पे भी मॉड्यूलस नहीं 0 होगा। देन 14 में करोगे तो यहाँ पर 1 ऑड डे होगा, एंड यहाँ पर जो ये जो शाम हो रहा है, ठीक है, ये शाम हो रहा है ऑड डेज का शाम। देन ये 10 आएगा, ये भी नहीं होगा। देन यहाँ पर आएगा 15 में सेम 1 ऑड डे, तो यहाँ तक ऐड करेंगे तो 11 आएगा। देन 16 में 2 ऑड डे होगा, ठीक है, 2 ऑड डे होगा तो यहाँ पर 11 + 2 मतलब 13 आएगा। यहाँ से ऑड डेज यहाँ तक मतलब ये पूरा के पूरा शाम, ठीक है। देन 17 में क्या आएगा 2017 में 1 ऑड डे होगा, एंड यहाँ पर क्या होगा तो ये 1 ऐड करोगे तो क्या इतना तक 14 होगा, एंड 14 इज मॉड्यूलो 7 मतलब 14 को 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0, ठीक है। तो 0 आएगा तो इसका जो नेक्स्ट ईयर होगा इमीडिएट 2018 होगा, सेम कैलेंडर वाला एज द सेम कैलेंडर विथ 2007, ठीक है। तो ये था इसका आंसर 218 2018, ठीक है। आई थिंक ये जो प्रॉब्लम है आपको समझ में आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये इजी एक्सप्लेनेशन है एंड मैं जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे रहा हूँ वो बहुत ही मतलब सोच समझ के दे रहा हूँ, इजी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करके जाना एंड एक कमेंट ज़रूर छड़ के जाना कैसे लगा, ठीक है। नेक्स्ट 19 देखो, बुलाई ऑन सेलिंग 17 बॉल्स 720, ठीक है,
there is a loss of on selling of 17 balls at rupees 720, there is a loss equal to the cost price of 5 balls, the cost price of a ball is। देखो मतलब क्या है, 17 बॉल को 720 रुपीज़ में सेल करने में जो लॉस होता है वो 5 टाइम्स ईच बॉल का जो प्राइस है उसके साथ इक्वल है, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ऑप्शन से, ठीक है। देखो यहाँ पर एप्टीट्यूड में कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट करोगे, कुछ क्वेश्चन ऑप्शन डिस्कस करके करोगे, कुछ क्वेश्चंस थोड़ा बहुत मतलब एक्सप्लेनेशन देके करोगे, ठीक है। ऐसे करना होगा एंड आपको ये समझना है क्वेश्चंस को देखकर। तो ये क्वेश्चन जो है ये ऑप्शन से करोगे तो सबसे ईजी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन 1 देखो, ऑप्शन 1 में बोला है जो है 45, ठीक है। तो 45 ईच बॉल का प्राइस होगा, तो 5 बॉल का प्राइस कितना होगा, 5 × 45 तो होगा 225। नाउ 17 बॉल का जो प्राइस है देन 17 बॉल्स का प्राइस क्या होगा 445, तो यहाँ पर देखो क्या होगा 5 देन 3 4 1 सा 4 जस्ट अ सेकेंड 14 तो 5 8 28 प्लस 5 33 33 36 36 एंड यहाँ पर जो होगा 3 4 1 सा 4 7 तो 765 होगा, ठीक है। एंड यहाँ से ठीक है इसको मतलब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 720 आपको आना चाहिए, बट यहाँ से 225 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तो नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड। सिमिलरली ये भी डिस्कार्ड होएगा। नाउ देखते 50 एंड 60 को ट्राई करते हैं, ठीक है। तो देखो एक बॉल का प्राइस 50 होगा तो 17 बॉल का प्राइस क्या होगा, 17 बॉल का जो प्राइस होगा 17 × 50 होगा 850, ठीक है। एंड 5 बॉल्स का क्या होगा 5 × 50 तो ये हो जाएगा 250, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट करोगे तो 720 आना चाहिए, बट आ रहा है क्या, नो ये भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये भी डिस्कार्ड। नाउ ऑप्शन 4 को चेक करते हैं। देखो 17 बॉल्स का प्राइस क्या होगा, तो होगा ये होगा 1020, ठीक है। एंड 5 बॉल्स का प्राइस कितना होगा 60, ठीक है। तो ये होगा 300, तो देखो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 720 आएगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम का मतलब जो है मोटो समझ रहे हो, देखो क्या बोला है 17 बॉल्स को ये प्राइस में जो सेल करने में जो ओरिजिनल प्राइस होगा उससे जो है 5 टाइम्स जो है ये बॉल का जो है प्राइस मतलब लॉस हो जाता है, ठीक है। तो मतलब टोटल जो प्राइस होगा मतलब एग्जैक्ट जो प्राइस होगा वो क्या होगा, एग्जैक्ट जो प्राइस होगा वो होगा 60 × 17 एंड 5 बॉल्स का जो प्राइस होगा ये होगा दिस वाला 300। सो इससे ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये लॉस वाला अमाउंट जो है इससे मतलब बिक रहा है बॉल, तो ये होगा करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन 4। आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज वेरी इजी, ठीक है। देखो ये एक्सप्लेनेशन बहुत ईजी है, मैं तो यहाँ पर आपको मतलब अंडरस्टैंड करते करते बोल रहा हूँ, आप जब स्पीड हो जाएगा ना तो बहुत कुछ सेकेंड्स के अंदर आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट 20, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या बोला है देखो, सो अ मेटेलिक शीट इज ऑफ रेक्टेंगुलर शेप विथ डायमेंशंस 48 मीटर इंटू 36 मीटर। So from each of its corners a square is cut off so as to make an open box. Okay, if the length of the square is 8 meter then the volume of the box is। तो देखो कैसा है, ऐसा एक रेक्टेंगुलर सीट है, ठीक है, ऐसा एक रेक्टेंगुलर सीट है जिसका लेंथ है 48 मीटर एंड ब्रेथ है 36 मीटर। यहाँ से 4 कॉर्नर में 8 × 8 का जो है 4 स्क्वायर, ठीक है, काट रहे हैं, ठीक है। एंड बाकी जो मतलब बन रहा है उससे एक बॉक्स बन रहा है, ठीक है। तो बॉक्स क्या बनेगा, ठीक है। तो देखो बॉक्स जो बनेगा ऐसा कोई बॉक्स बनेगा, ये वाला, जस्ट अ सेकेंड दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। देखो आप देखो ये जो बॉक्स बन रहा है ये वाला 4 एंड ये जो है ये जो पोजीशन होगा ये होगा जो है बॉक्स का लेंथ, ये होगा ब्रेथ एंड हाइट क्या होगा, ये वाला होगा हाइट, क्योंकि यहाँ से देखो आप यहाँ से जो है ये ही होगा जो है बॉक्स का हाइट, ठीक है। क्योंकि ये जो सीट्स है सीट्स तो यहाँ से आप मतलब एंगल करके 90 डिग्री एंगल करोगे तो ये सीट्स ऊपर आ जाएगा, ये सीट्स भी सिमिलरली ऊपर आ जाएगा, तो ये एक ओपन बॉक्स फॉर्म करेगा एंड ये भी यहाँ से ऊपर आ जाएगा। तो बॉक्स कैसा देखना होगा, मतलब ऐसा होगा बॉक्स देखने में, ठीक है। तो कुछ लेंथ तो है एंड ये हाइट एंड यहाँ से कुछ ब्रेथ होगा आपका, ठीक है। तो ये लेंथ क्या होगा, देखो लेंथ होगा 48 - 8 + 8, सो लेंथ होगा यहाँ से 8 बाद मतलब सब्ट्रैक्ट होगा एंड यहाँ से 8 बाद सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये होगा आपका
32, तो लेंथ होगा 32। सिमिलरली ब्रेथ क्या होगा, ब्रेथ होगा 36 माइनस 16, तो ये होगा 20। एंड हाइट क्या होगा, हाइट होगा ये 8 पोर्शन, क्योंकि यही जो पोर्शन है यही आपका हाइट बन रहा है, ठीक है। तो ये जो मतलब ओपन टाइप का बॉक्स टाइप का जो क्यूबॉइड होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। सो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट मीन्स ये आपका कितना होगा 32 इंटू 8 64 इंटू 8, 8 का क्यूब मीन्स 512 एंड 0, तो दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ये था टोटल 20 क्वेश्चन जो फर्स्ट 3 लेक्चर्स में मैं कवर किया, वन कंप्लीट मॉडल पेपर, ठीक है। मॉडल क्वेश्चन सोच सकते हो आप, ये कोई एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन नहीं है, ऑल क्वेश्चंस आर न्यू क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब CSR लेवल का जो है एप्टीट्यूड का न्यू क्वेश्चन है सभी के सभी, ठीक है। तो ये सेशंस कैसा लगा आप लोगों का, एक कमेंट जरूर करके जाना। एंड प्लीज़ आप लोग अपना फ्रेंड्स के साथ ये ज़रूर शेयर करो, ठीक है। आई थिंक बहुत मतलब आप खुद भी सीखो एंड दूसरे को भी मतलब सीखने के लिए आप थोड़ा भी प्रयास करो तो वो भी सीख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप नॉलेज जितना शेयर करोगे ना तो नॉलेज आपका अपने आप बढ़ेगा, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा नहीं होगा कि शेयर करने में तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो भाई मिलते हैं अगला वीडियो में, एंड जो लोग नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, ओके। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।